ये तेरे पॉडकास्ट पे जा रहा है? हाँ। अच्छा, ओके, कूल। सनी सिंह कौन हुआ? सोनू की टिट्टू वाला। हाँ, सोनू की टीटू वाला टिट्टू वाला। वो उसने आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल टी शर्ट ली थी। वो है टिंगू सा बच्चा, बट लंबी सी ऐसे टी शर्ट पहन के आया था। आई थिंक मार्केट है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो डेयर आउट करते हैं कि हाँ मेरे को पहनना है। ये सारे हो करते हैं। नॉट एवरी हैंड यू शेक हैज टच्ड अ डिक। तो लाइक आई कैन नॉट वेयर दिस एट होम और इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। लाइक बंदे ने सीधा लिखा है बॉय मस्त एकदम। तुम दोनों उसी में ही हो। हाँ, हम दोनों उसी में ही हैं, क्या बोले ना। ये लगाओ। Don't have sex in water, fish. Don't drink water. Water fishes have हाँ. sex in it. Then- Don't have sex in water नहीं था। No, mine. So इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली जो कॉन्वर्सेशन अपन कर रहे हैं इसको। So, welcome back to another episode of Anything But Wrong, guys. Today we have Rishabh Chadda with us. He's the founder and CEO of Natty Garb. Natty Garb is an Indian homegrown fashion label. He's trying to redefine what Indian fashion standards look like when it comes to swag, when it comes to street styles, when it comes to really bold designs. He's doing it all. Let's hear it directly from him. Welcome, Rishabh bhai. How are you? Good, yeah. Thank you so much for calling me. Thank you so much for having me here. It's our pleasure, to be honest. Now, before we start the podcast, I have to tell you the story behind this T-shirt. Okay, would love to hear it out. हाँ. This T-shirt is by Natty, firstly. So, you must be knowing the founder of Warping Theories. Kuship, yes, Kuship and Urvash. Correct. They had come to my house. I live 1-2 minutes away from them, okay? They had come to my house. Okay. One of them was wearing the white T-shirt with the blue bull on it. The sugar-free Red Bull, yes. Correct. Yes. They were wearing that, and that was the first time I got introduced to Natty Garb. Okay. I saw that T-shirt and I was like, I want this T-shirt. I just love this T-shirt. I want it. Okay. ठीक है, मैं गया उसी रात को, मैं वेबसाइट पे गया, सोल्ड आउट, दैट प्रोडक्ट इज स्टॉक्ड आउट। मैंने ईमेल किया है, मैंने डीएम किया नाटी का आपको, आई वांट दिस प्रोडक्ट इन माय साइज। एक बार रिस्पॉन्स आया था, एक बार रिस्पॉन्स नहीं आया था। ठीक है, मैंने भी फिर मैं आई थोड़ा गेव होप्स, लाइक आई रियली वांटेड दैट टी शर्ट बट आई काइंड ऑफ गेव होप्स। ठीक है, 2-3 months later from that day आई हैड गॉन टू CDC टू शो माई प्रोडक्ट्स टू देम कि मेरे को भी आप अपने स्टोर में लिस्ट कर दो, माई डेनिम प्रोडक्ट्स को भी। तो वो मीटिंग तो बहुत अच्छी गई। मीटिंग के बाद मैं बोला चलो अब ISCDC एक चक्कर मार लेते हैं। मैं वो चक्कर मार रहा हूँ, मेरे सामने वहाँ के एक एम्प्लॉय ने हैंगर लगाया रैक पे ये टी शर्ट का, 1 of 1 piece बोल के, एंड दिस इज द सेम थिंग जस्ट इन अ डिफरेंट कलर एंड दैट टू 1 of 1 piece। मैं ये पीस देख के बोल रहा हूँ ये भाई बना मेरे लिए है, अगर ये टाइम पे ये इधर आया ये बना मेरे लिए है। उसने जैसे वो हैंगर पे लगाया, मैंने वही हैंगर से उतारा, मैंने जाके ट्राई किया, इट वाज अ साइज बिगर फॉर मी, वन साइज। Okay. लाइक फक इट, दिस इज अ 1 of 1 piece, मैं खुद को उतना बड़ा कर दूंगा दैट आई कैन फिट इनटू दिस, बट दिस टी शर्ट इज गोइंग होम विथ मी एंड आई टुक इट। So sweet, yeah. It actually felt like that t-shirt was made for me because I waited for this design for a while, हाँ. the same design। और फिर वो 1 of 1 piece same design का जब आता है, I'm like, bro, this is made Nothing for better. me. Nothing better. Correct. What a feeling that was, and that was the first time I got introduced to Natty. Of course, after that, I've bought a bunch of products from y'all. Okay. Of course, this t-shirt just holds a lot of value in my wardrobe. Means a lot, man. Thank you. So let's begin our chat. Okay. Let's firstly rewind to 2017. Okay? When Natty Garb just started as a blog, not as a brand. आप मेरे को पहले उसके बारे में बताओ कि आपका क्या आइडिया था वो ब्लॉग स्टार्ट करने का, and how things kept moving forward from there. ठीक है, so in the year 2017 मैं निफ्ट में था। ठीक है, I was studying at that time. I guess I was in second year. ठीक है, and उसके बाद I don't know, I used to dress really well in college. तो मेरी एक सीनियर थी एंड मतलब बेसिकली 2-3 लोग थे जिनका एक पूरा ग्रुप था। तो वो एक बार मेरे पास मिलने आए, वैसे ही हम लोग, उस दिन मैंने कुछ अच्छा पहना हुआ था, आई डोंट रिमेंबर क्या पहना था, बट हाँ, दे सेड कि यार ऋषभ तू इतना चमकता हुआ आता है कॉलेज, तू अपना ब्लॉग क्यों नहीं शुरू करता। आई वाज लाइक बात तो पता नहीं कैसी कह रहे हो आप, बट ठीक है, आई ट्राई एंड डू इट। सो in the year 2017 there were these big influencers in the game, Osama Siddiqui and all these guys who are actually making it big and look
लाइक वो थे मार्केट में, वो दिखते थे, ठीक है। सो उनको देख देख के आई सॉ कि यार अगर ये कर रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो डू इट। अगर मैं तैयार होके आई रहा हूँ, व्हाट आई नीड टू डू, ओटीटी करना है, कॉलेज के लिए तैयार होना है, जाना है कॉलेज में। हमारी लोकेशंस बहुत अच्छी अच्छी होती थी। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेंबर पुटिंग ऑन makeup, getting up early in the morning at 4:30 in the morning, and तैयार होके आई यूज टू गो आउट। एंड फर्स्ट शॉट जो मैंने लिया था, आई थिंक वो मैंने रेलवे पे लिया था, ठीक है। तो पश्चिम विहार के आसपास देयर वाज दिस रेलवे स्टेशन वाइब वेयर आई वेंट एंड शॉट माई सेल्फ। मेरा एक फ्रेंड था अमर, हु वाज इनटू फोटोग्राफी। आई सेड कि यार तू थोड़ी सा मेरे शूट करना शुरू कर, लेट्स डू दैट। फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग। फिर ब्लॉग करने के बाद जो सबसे बड़ी सर खपाई थी वो ये थी कि उस टाइम पे इंस्टाग्राम वॉजेंट एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म विच वॉज देयर टू प्रमोट इन्फ्लुएंसर्स और फैशन ब्लॉगिंग और ये सब। सो उसमें वी यूज टू राइट अबाउट द स्टफ, और उसका आई गेस क्या था वो जिस पे हम लिखते थे, देयर वाज दिस वेबसाइट ऑल्सो, उस पे हम लोग कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखते थे। तो मैं उसके बारे में लिखना शुरू करता था, विच वॉज वेरी टाइम टेकिंग। एंड मैंने 2 साल तक ये करा। बीच में समहाउ आई गॉट अ डील, एंड मेरे को एक इंटरनेशनल ब्रांड ने भेजा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट रिगार्डिंग यू शुड जस्ट मार्केट इट, फेस पे लगाओ और इसका वीडियो बनाओ। मैंने वो कभी करा ही नहीं। आई वाज लाइक यार मैं तो फैशन वाला बंदा हूँ, ये मेरे को क्या भेज रहे हैं, मेरे को ये बनाना ही नहीं आएगा। सो समहाउ मैंने वो आ गया, बट आई नेवर एनकरेज माई सेल्फ टू डू दैट, क्योंकि मैं एकदम से फैशन से एकदम ब्यूटी में चला जाऊंगा, मेरी ऑडियंस भी कहेगी यार क्या हुआ क्या इसको। सो देयर वाज द टाइम कि मैंने ब्रांड से शॉपिंग करी, सबको प्रमोट करना शुरू करा। समहाउ गॉट अ डील फ्रॉम मैनी ब्रांड्स, आई एम नॉट गोना नेम द ब्रांड्स नाउ, बट यस, कैसे तैसे मिला। मिलते मिलते मेरे को लगा कि यार इससे भयंकर पैसा नहीं कमाया जा सकता। उस टाइम पे मेरा ये माइंडसेट था, और ये सुबह सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठना, इट्स समथिंग दैट आई कांट डू। But why were you doing that? Why were you waking up at 4-5 in the morning to write those blogs? नो नो नो, टू गेट माई सेल्फ शॉट इन अ गुड लोकेशन इन दिल्ली, Okay, okay. जहाँ पे भीड़ ना हो, जहाँ पे मैं कॉन्शियस ना फील करूँ कि यार मेरे को जाना है मार्केट में, जाके मेरे को अपना शूट करना है और बाकी सारे मेरे को घूर रहे हैं। Right. तो आई फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, राइट। और उस टाइम पे भी भले ही आई एम लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज देयर, बट इफ पीपल आर लुकिंग एट यू, यू समहाउ विद अ ह्यूमन टेंडेंसी you'll जज योरसेल्फ कि यार तुम आर यू डूइंग इट राइट और नॉट। Totally makes sense. सो आई थिंक दैट्स हाउ थिंग्स टर्न्ड अप। एंड उसके बाद लिखता था रात को बैठ के कि इसके बारे में क्या करना है। फोटोज आती थी, उनको एडिट करता था, घबराता था कि कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा, सही है नहीं है। फिर खुद के सेट्स वगैरह भी बनाए, सारा कुछ करा। पर थोड़े टाइम बाद ऐसा लगा यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू गिव अप एंड स्टार्ट समथिंग विच आई एम मोर पैशनेट अबाउट। Okay. सो आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड। Natika. हाँ, so Natty Garb was the blog name. Natty means unusual, Garb means clothing. So it was a name gifted by my best friend in school, saying कि तू कपड़े वपड़े अच्छे पहनता है, I think ये तेरे लिए अच्छा हुआ है. This is a good name, so I'm gifting you this. So go with this. I was like perfect. Then हमने द हटा दिया था, ठीक है, नाटी गाब रखा and started my own thing. But I was in college. In 2019 30th of November मैंने एक छोटी सी कलेक्शन बनाई विद द हेल्प ऑफ माय सीनियर इन कॉलेज कि मैं अब ये बना रहा हूँ, मैं फैशन ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, एंड विदाउट एनी आइडिएशन एनीथिंग कि कहाँ बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, क्या होगा, नथिंग। मैंने कलेक्शन खड़ी कर दी। सो मैंने ये खड़ी कैसे करी कलेक्शन वो मैं बताऊंगा, बट जब ये कलेक्शन खड़ी कर दी उसके बाद सारा शूट वगैरह कर दिया, सब कुछ हो गया। जब सब कुछ बन गया उसके बाद मैंने कहा अब क्या। आई वाज स्टक, आई वाज लाइक अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। Correct. सो आई वाज कंफ्यूज। सो कॉलेज टाइम पे ही समहाउ सारा कुछ हुआ। फिर मेरे को सोर्सिंग के लिए बहुत लोगों के मैसेजेस आए वगैरह आए, और मैं सोर्सिंग के डब्बे, मैंने फर्स्ट सोर्सिंग की रिक्वेस्ट का बताता हूँ कि फर्स्ट सोर्सिंग के उसमें मैं
चांदनी चौक से एक बहुत बड़ा सा रेड कलर का डब्बा लेके आया। मैंने कहा सेलिब्रिटी को जा रहा है, इट शुड बी पैकेज्ड इन अ बेस्ट वे पॉसिबल। सो मैंने एक बहुत बड़े डब्बे के अंदर सारा सामान रखा, उसको ऐसे नीचे रखा। इट वॉज अ वेलवेट बॉक्स रेड कलर का, आई स्टिल रिमेंबर। उसके ऊपर मैंने बड़ा सा स्टिकर चिपकाया और मैंने ये भेज दिया, ठीक है। आई थिंक सनी सिंह वॉज द फर्स्ट एक्टर टू वेयर नाटी गाउन। सनी सिंह कौन हुआ? सोनू की टिट्टू वाला? हाँ, सोनू की टीटू वाला टिट्टू वाला तो सोनू की टीटू वाला, यस। हाँ, सो आई थिंक उसने पहना, बट जब मेरे कपड़े वापस आए ना, तो वो थैली में ऐसे रज के चिपक के ऐसे पूरा गंदे तरीके से बांध बूंद के उन्होंने वापस भेज दिए। तो मैंने कहा भाई ये दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इतना इतना वो नहीं करना। तो ये बहुत लंबी मेरी एक जर्नी है यार, जिसके अंदर सारा कुछ मैंने शुरू किया है विद आउट ऑफ पैशन। 2019 में जब शुरू किया, सारा कुछ कर दिया, बना दिया। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया था। फिर मैंने इसको इंटरनेशनली जाने का सोचा। देन आई डिड अ शो विच गिफ्टेड मी अ शो इन मिलान, ठीक है। आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन, बट सेकेंडली आई वॉज वॉर्न्ड बाय हिम सेइंग कि बहुत साल सारे जीतते हैं। बट सॉरी टू इंटरप्ट द फ्लो, बट अभी लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट शो, व्हाट हाउ डिड, मतलब क्या, व्हाट वाज द शो अबाउट एंड देन व्हाट डिड यू विन, लाइक? ओके, सो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा ग्रेजुएशन टाइम हो चुका है, ठीक है। सो 2019 इज द ग्रेजुएशन वाला ईयर ओनली, जिसमें मैंने एक कलेक्शन बना दी है। उसके बाद मैं अच्छे खासे तरीके से अपनी कलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। मेरी फाइनल कलेक्शन मेरे को कॉलेज में रिप्रेजेंट करनी है। उससे पहले मैंने एक फैशन वीक में पार्टिसिपेट किया, जिसमें देयर वर स्टूडेंट्स हु वर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। इफ दे विन दे गेट अ शो इन मिलान। इट वाज द थर्ड सीजन दैट दे वर डूइंग, थर्ड और फोर्थ सीजन। उस चीज के अंदर अगर सपोजिटली आप जीत जाते हो तो आपको मिलान का शो मिलता है। बट मेरे से पहले आज तक कोई गया नहीं था, ठीक है। आई वॉज वॉन्ड बाय समबडी इन देयर टीम कि जीत तो गए हो, बहुत बढ़िया, पर शायद जा नहीं पाओगे, बिकॉज आज तक कोई जा नहीं पाया। उन्होंने जब भी अप्लाई करा, या तो वीज़ा रिजेक्शंस हैं या कुछ और है। सो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने दिमाग लगाया, मैंने पूरे परिवार का वीज़ा लगवा दिया। फैमिली में तो मिल जाता है। मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं। मेरा वीज़ा आ गया। अब वो बौखला गए कि अब तो देना पड़ेगा। देन आई वेंट देयर, आई डिड माई शो। सो इटालियंस का अगर ब्रावो मुंह से निकलता है ना, it means that it's the highest form of compliment that they can give. And when they say your collection is funny or something like that, it means it's in a good note. Okay. It's never in a wrong way. यहाँ पे अगर कोई बोलेगा भाई फनी लग रहा है, तो वो बंदा बोलेगा अभी बताता हूँ, रुक। Right. ठीक है, वहाँ पे it's like if they're saying your collections are very nice, it's bravo, it's funny, so it's a compliment. Okay. सो आई डिड दैट शो, सारा कुछ हुआ। शो करने के बाद सब लोग, देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन आल्सो सेइंग ब्रावो। Wow. सो दैट पर्टिकुलर कलेक्शन वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम नेविगेशन, मैप से रिलेटेड मैंने बहुत, क्योंकि निफ्ट वाला माइंडसेट था, इट डजंट मैटर व्हाट वर्क्स इन द मार्केट, इट्स जस्ट द क्रिएटिव साइड ऑफ इट। Correct. ये सब करा, शो करके आया, वापस आया, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करा, जीत गया, सारा कुछ हो गया। सो दिस वाज इट। 2020 से पहले फिर 2020 के स्टार्ट में आई वेंट फॉर अ शोरूम वेयर आई शोकेस्ड माय प्रोडक्ट्स, जिसमें ये लोग इकट्ठा बल्क में ऑर्डर देते हैं, ठीक है। आई डिड दैट, एंड उन ऑर्डर से यू बेसिकली गेट लाइक 20-25 लाख रुपए का ऑर्डर एक बार में आता है। Understood. उससे धंधा चल सकता है, करेक्ट। Correct. सो वो मैंने किया। जैसे ही मैं लैंड हुआ था दिल्ली में, लॉकडाउन लग गया था। Oh. So there are many stories which are going side by side in this whole process from 2017 to 2020. फिर उस तरीके से there was a evolution where वापस आया, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, पैंडेमिक आ गया, सारा कुछ हो गया। उसके बाद 2021 फिर पैंडेमिक था। टोटल रीबूट लिया ब्रांड ने, टोटल रीबूट। 2021 के एंड में टोटल रीबूट था। Okay. मैं 50-50, 60-60 हज़ार रुपए की जैकेट्स बेच रहा था। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कि अगर यहाँ पे कोई पहन के घूम जाए तो 2 बार बंदा घूम के बोलेगा कि भाई कहाँ है, न्यूयॉर्क में कहाँ है। सही बात है। Okay. इट वॉज नॉट अ गुड मार्केट फिट। इट वॉज अ गुड मार्केट फिट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, येस, बट नॉट फॉर इंडिया।
at that time. Ab to people are very experimental, so I think maybe that thing can work at a good price point, not at those price points, of course. So that is how the whole 2017 to 2021 happened. Okay, and 2021 में नाटी गाब as a website launched? नहीं. So 2021 में we started making t-shirts. मैंने कहा कि यार चलो ठीक है. I was 2020 में और 2021 में तुम बहुत ज़्यादा दिमाग में वो रहे थे. I was getting frustrated, bro. I was in that state of mind कि यार कुछ है ही नहीं करने को. And I can't sit idle. I can't. Even on Sundays, I can't. मेरे को ये है कि मेरे को कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करना है. सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, कुछ भी है. I am 24/7 thinking about business, creatively, and how things will work, how this should happen, how that should happen. Absolutely correct. वो I cannot leave. वो till date मेरे अंदर curiosity. I have anxiety issues कि मैं कुछ और सोच नहीं पाता. मैं बात कर रहा हूँ बट साथ साथ मेरे दिमाग में पीछे चल रहा होगा कि वो टी शर्ट या वो प्रोडक्ट बन के आ गया मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऐसा कुछ होता है. सो दिस वाज द process. Quite interesting. As you mentioned, the type of collections you were making back then, and probably I feel right now also, most of your designs are loud. Loud in the sense कि मतलब एक बार कोई अगर देखता है ना तो देखता तो है ही वापस कि भाई इसने क्या पहना है. Not in a bad way, in a very good way. Like when I'm also saying they're loud in a very good way. For example, I have the orange hoodie with the frog logo. Yes. That is a color wise also it's a loud hoodie. Weightage wise also it's हाँ, weightage wise तो बहुत है. Even I agree. print wise also. Correct. तो जब मैं वो पहन के जाता हूँ कभी भी तो लोग तो देखते ही है. But probably I like that. Probably I want people to notice what I am investing on my time. If I'm thinking कि हाँ मेरे को ये पहनना है, मेरे को खुद को ऐसे स्टाइल करना, I'm also quite passionate about how I look, right? What I'm wearing, everything. I want those designs to be that attractive and that loud that people actually see ki, bro, where is this design from? What is this brand? Like, I like that. So that is why I really like Nati Gapka collections. But in the best way, the collections are loud and everything. Where do your visual this thing comes from? कि ideation या imagination या जो भी मेरे को अभी ऐसा create करना है, आप inspiration कहाँ से लेते हो? I think मैं as a personality ही काफ़ी loud हूँ. Okay. मेरे को सारी चीज़ें which are bright and popping, minimalist वाला fashion I have never done. मतलब अगर मैं ये सिंपल कुछ प्रोडक्ट बनाया भी है तो इसमें एक चमकती चीज़ डाली है. That's what my ideology is. I think मैं as a personality only, I feel that I am more drawn towards loudness rather than minimalistic aesthetic. So जैसे अगर मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी कोई नाटी को देखे तो इट शुड बी अ स्पेशल थिंग व्हेन ही लाइक टेक्स आउट दैट फ्रॉम देयर वार्डरोब. Right. इट शुड बी लाइक यार आज ये पहनता हूँ, ठीक है. सो दैट्स द आइडियोलॉजी कि वो स्पेशल टाइम के लिए बंदा वो करे. जैसे हर कोई बंदा कुछ नया खरीद के लाता है तो वो हैंगर रखता है और फिर कहता है यार ये उस दिन पहनूंगा. करेक्ट. ठीक है. तो मेरी आइडियोलॉजी हमेशा जब भी व्हेन आई एम डिजाइनिंग, आई वांट टू डिजाइन, आई नेवर थिंक कि इट्स फॉर अ यूजुअल डे. Right. इट्स गुड फॉर मनी वाइज. अगर मेरे को चीज़ें निकालनी है ऐसी कि मैं थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाऊं तो वो इट्स अ ब्रांड एंड बिजनेस कॉल. बट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ डिजाइनर, एज अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव, एज एवरीथिंग, आई थिंक लाउड डिजाइन्स एंड समथिंग विच इज स्पेशल नीड्स टू बी देयर. कि हमने निकाला कि आज ये You are as a person very okay with people not wearing your clothes on an everyday basis, but वो special occasion पे when you want to stand out, it should be natty. आई थिंक कि कभी भी, जैसे मैं भी, आप मेरे को देखोगे, आई थिंक 90% ऑफ टाइम आई एम इन अ ब्लैक टी शर्ट. Okay. मेरी टीम मेरे पीछे पड़ जाती है कि भैया क्या है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना रहे हैं, सारा कुछ है. मैं 24 घंटे ब्लैक टी शर्ट में रहता हूँ, ठीक है. इट्स ईजी, क्विक डिसीजन एवरी डे. कोई मेरा दिमाग नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, काम पे जा रहा हूँ, मेरे को अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं क्या पहन रहा हूँ. बट जिस दिन मैं पहन के आ रहा हूँ उस दिन फिर मैं कुछ अच्छा पहन के आऊँ, ठीक है. सो दैट इट्स नॉट बोरिंग फॉर मी ऑल्सो. Right. So I think yes, I'll be very happy if people look up to the brand in a way that it's made for some special day only. That's my outlook. That's my personal outlook.
कि अगर उसने पहना है, अगर उसको सपोजली अगर, अब जैसे माई टीम इज ऑल्सो देयर, ठीक है, सो इफ दे आर वेयरिंग माई क्लोथ्स दे वेयर इट ऑन गुड डेज ऑल्सो, कि वो कहते हैं कि हाँ हम इस दिन पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे, ये करेंगे, इवेंट है तो हम पहनेंगे, शॉप पे रिप्रेजेंटेशन है तो हम पहनेंगे, सारा कुछ है, तो इट्स लाइक दैट. राइट. So it should be a time where you want to represent loudness, where you want to represent something that is that particular day or time or venue is special for you. That is what my ideology is for my brand. कि मैं कुछ बनाऊंगा तो ऐसा होगा कि तड़कता भड़कता है, बंदा तभी पहनेगा. करेक्ट, मेक सेंस ना. आपने अपना ऑडियंस ही वैसे ही आप केटर डाउन भी कर रहे हो, एक नीश भी आप पकड़ के चल रहे हो. आई थिंक दैट विल वर्क रियली वेल ऑल्सो. वॉक अस थ्रू योर डिज़ाइन प्रोसेस व्हेन यू आर सेइंग इट्स ऑल लाउड एंड ऑल. तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इज इट योर मूड दैट दिस इज माई मूड सो आई विल गो विद दिस? इज इट द फैब्रिक, ओ दिस इज द फैब्रिक सो आई शुड डिज़ाइन इन इट इन अ डिफरेंट वे, और इज इट केओस फर्स्ट? आई थिंक इट्स थ्री ऑफ देम. ओके. इसके अंदर कि कभी कभी आपने हमारे शूट्स देखे, जितने भी हम शूट करते हैं, उसके अंदर हर बार ना आपको कुछ अलग वाइब दिखेगी. करेक्ट, पूरा आप लोग एक सेट ही क्रिएट कर लेते हाँ, हो. सो यू विल नेवर सी समथिंग बीइंग वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द वाइब. ओके. सो मेरे को ये लगता है कि एक ऑडियंस बहुत जल्दी जल्दी बोर होती है, इंडियन ऑडियंस स्पेशली ऐसे बोर होती है. वो ऐसे देखेगी, वो कहेगी हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएगी, फिर देखेगी हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाएगी. मैं जब भी डिज़ाइन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी वाइब जैसी है ना उस टाइम, अगर मेरे दिमाग में है कि मेरे को बैड बॉय वाइब देनी है तो मैं वैसे ही बनाऊंगा. ठीक है. अगर मेरे को लगता है कि मेरे को इस साल थोड़ा सा, आज इस बार यार थोड़ा सा मैं सेटल डाउन हो रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ इस वाइब में, मेरे को फिर ये वाइब बनानी है. सो दैट इज़ हाउ द डिज़ाइन वर्क्स. फिर वेन एवर आई गेट टाइम एंड पूरा मेरे को मिलता है, तो जब मैं जाता हूँ मार्केट्स में देखने के लिए कि क्या फैब्रिक्स हैं, क्या नहीं है, स्वॉचेस हमारे पास आते हैं, उसमें से कोई चीज़ क्लिक हो गई तो हाँ ठीक है, वी नीड टू फिट इट दिस वे. करेक्ट. ठीक है. देन केओस, यस, कि कभी कभी हमारे को लगता है कि यार ओए भाई बहुत टाइम हो गया, कुछ निकाला नहीं यार मार्केट में, क्या करें, तो एक काम कर, वो चीज़ें हैं, वो है, हाँ ऐसे करो, बना दे. ठीक है. बट आई थिंक हमारे नाटी के केस में सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम नहीं लगा वो बिकता है. एक आइडिया आ गया, बन गया, बन के तैयार हो गया, निकल गया, खत्म हो गया, ये है उसका ट्रैवल टाइम. जिस पे ज्यादा दिमाग लगा दिया, एक डिजाइन को जी लग गया भाई, महीना लग गया बनाने में कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ऐसे, वो चलाओगे, वो चलेगा ही नहीं कभी हमारे उसमें. वो हम निकालते हैं, नहीं चलता, वो लटक जाता है, फिर उसको कैसे जैसे खत्म करना पड़ता है कि भाई ये वाला डिजाइन तो चला ही नहीं बिल्कुल भी. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कैसा मार्केट कैसा है व्हेन यू आर क्रिएटिंग डिजाइन्स व्हिच आर लाइक हेविली ग्राफिक्स. तो उसका तो मतलब चलने के भी चांसेस है, नहीं चलने के भी, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव. ठीक है. बट व्हेन यू गाइज लॉन्च टी शर्ट्स लाइक डोंट हैव सेक्स इन वाटर, फिश डोंट ड्रिंक वाटर, fishes have हाँ. sex in it. Then- Don't have sex in and- water neither. no mine. No, don't yeah, one was that, then one was this whole don't hold hands wala. आई न्यू कि ये चीज आएगी, बट मैं बताता हूँ कि नाटी यूजुअली, जैसे मेरे दोस्त थे सारे नॉटी नॉटी नाटी नूटी ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है. आई एम लाइक ठीक है. तो इंडिया में, ठीक है, सेक्स वाज नेवर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ओपन टॉपिक. Correct. सारे हो करते हैं. ठीक है. हमने कभी भी पर्टिकुलरली सेक्स को ऐसे फाड़ के मुंह डिजाइन में नहीं डाला कि भाई ये डाल दिया, ये न्यूड ऐसे डाल दिया, ऐसे कर, नहीं करा. Yes. हमने आर्टवर्क, मैंने सबसे पहला जो मेरा डिजाइन था, ठीक है, आई सॉ एन आर्टवर्क कि एक स्कल था, उसने हाथ में ना टेलीफोन पकड़ा हुआ था ऐसे. मैंने उस स्कल देखा, मैंने कहा यार अगर मैं इसके ऊपर बिल्ली ऐसे बना दूं तो कैसा रहेगा. मैंने कहा ठीक है, बिल्ली बना दी. मेरे को लगा स्कल और बिल्ली वाला डिजाइन है, सही है. ठीक है. उसके ऊपर छोटा सा मैंने लिखा था लिखर हेयर. ठीक है, बहुत ही छोटा सा. सो वो ना कस्टमर के ओपिनियन से वो दिखेगा नहीं इतना इजीली. इट्स अ डिजाइन विच इज वेरी सटल, बट व्हेन यू रीड इट एंड देन यू नो रन योर ब्रेन आउट कि हाँ यार भाई ये बनाया है, सो दिल बी लाइक ओ. Right. मेरे को याद है आई लॉन्च दैट प्रोडक्ट एट AYCS एंड वो खत्म था वहीं पे.
हर कोई ऐसे टी शर्ट निकालता था, देखता था, जैसे ही वो पढ़ता था हंसता था. सो दे यूज्ड टू गेट दैट कि यार, तो मेरे को ये समझ में आ गया दैट सेक्स सेल्स. ठीक है, आज भी इंडिया में देयर आर वेलनेस और ये सब चीजों में अब प्रमोशन हो रहा है उस चीज का. हम एज अ ब्रांड उसको क्वर्की तरीके से कभी कभी डिजाइन थ्योरीज में यूज करते हैं. दोज आर आर नॉटी टी शर्ट्स. ठीक है, एंड दे आर आर बेस्ट सेलर्स. Exactly, I wanted to know this. Ki, are those selling? And you are saying it's your best seller. Wow, that's surprising. I mean, no, why surprising? Because I see, मैं अभी आप लोग के सामने मैं कुछ भी पहनूं, आज मेरे घर से तो मैं निकल रहा हूँ वो पहन के ना. Correct. मेरे घर वाले वहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा, डोंट शेक हैंड्स विद अ स्ट्रेंजर. आप समझ, यू नो व्हाट वाज दैट टी शर्ट? कैन यू प्लीज कोट इट? Not every hand you shake has touched a dick. So like I cannot wear this at home or in front of elders. Like, I don't mind wearing it in front of friends, but I cannot wear it in front of elders. So with that mentality, I wanted to know, are those products selling? Like what? But you are saying it's your best seller. यार हमारी ऑडियंस जो है वो यंग है. Correct. ठीक है, यंगस्टर्स के मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से भी मिलता हूँ AYCS में, या फिर हम लोग कभी भी हमारा अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन है या कुछ है, आई थिंक द रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द किड्स आर गेटिंग मोर स्ट्रोंगर. 100%. है ना. सो उस वे में लोग अगर ये चीज लिखते हैं ना, तो मम्मियाँ शायद, हो सकता है, आई डोंट नो पर्सनली कि उनका क्या रिएक्शन होगा, बट अगर वो बिक रहा है तो मतलब बंदे ले रहे हैं ना यार. वही तो सरप्राइजिंग है. उनकी मम्मियों का रिएक्शन है की पाया है वो करके होगा, मेरे को नहीं पता कि क्या एक्चुअल उनका रिएक्शन होगा, बट आई थिंक अगर वो चीज बिक रही है तो मे बी इट्स फनी फॉर एवरीबडी. करेक्ट. एंड इसमें कोई बहुत गलत या डिमीनिंग चीज हम नहीं लिख रहे. वी आर मेकिंग इट क्वर्कियर एंड इन अ वे वी आर यूजिंग इट. अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सारा कुछ है, बहुत लोग गालियां लिख देते हैं. हाँ, वो भी प्रॉब्लम ही है. वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड इट्स अ गाली. मतलब हम लोग तो मजे ले रहे हैं ना, हम लोग तो इस वे में हम लोग बना रहे हैं प्रोडक्ट्स. सो आई थिंक उस वे में जब प्रोडक्ट बंदा आता है, देखता है, वो हंसता है. पहले वो सबसे पहला रिएक्शन हंसने वाला होता है. पहले ऐसा नहीं होता कि रख दिया, नहीं, इट्स नेवर दैट रिएक्शन. करेक्ट. दैट इज द गेम चेंजर. इट्स ऑलवेज दैट दे लाफ एट इट फर्स्ट. वो ऐसे गेज करते हैं कि यार वाह, ये क्या बनाया है. Nice. Okay, I think that is only the game changer where the audience only feels कि wow, nice, हम ले लेते हैं. अगर audience को लगे अरे नहीं ये सब क्या है, वो that is the game changer where they are connecting with the design so well, I feel. I think, but it's working well for us, then, and Yeah, I think we've yeah, not of course. stopped doing that. Definitely, you shouldn't also. That was just my curiosity. So I was asking कि उन products का क्या होता है, मतलब market है उन products के लिए क्या? That was just my curiosity. Yeah, I think market है. There are a lot of people जो dare out करते हैं कि हम, हाँ, मेरे को पहनना है ये. सही. अगर हमारे लिए काम कर रहे हो तो हमारे को क्या है. Crazy. ठीक है, चलो देन लेट्स फर्स्ट क्विकली जंप ऑन टू आवर रैपिड फायर राउंड, सो दैट वो रैपिड फायर में हमको बहुत सारे एक आइडिया आ जाता है अबाउट द ब्रांड, अबाउट द टोनालिटी, एवरीथिंग, एंड देन वी कैन जंप ऑन टू द अदर सेगमेंट्स. ओके, कूल. एज द नेम सजेस्ट, वी हैव टू बी प्रीटी रैपिड. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. वन नाटिका पीस दैट डिफाइंस यू. Hype kills. हाइप किल्स. ओके. कोलैब ड्रीम, आर्टिस्ट, ब्रांड और क्रिएटर. आई एम श्योर आर्टिस्ट या ब्रांड ही होगा. I think ब्रांड मेरे ख्याल से Dior. ठीक है, इन्फ्लुएंसर में पता नहीं, एज अ पर्सन माई सेल्फ आई लाइक, मेरे को बहुत अनयूजुअल चीजें करने पसंद है, तो आई थिंक पंकज त्रिपाठी जी इज अ वेरी लवली. पर्टिकुलर पर्सन टू प्रमोट द ब्रांड, आई फील. I can imagine what you are imagining. You know, him wearing, yeah. So influencer, I don't think I have any that I would wish to. I also thought so. Craziest product you've ever worked on? I think Octa sliders. Octa slider. Yeah. Okay. What's one streetwear trend that needs to die? Streetwear. I totally agree with that, bro. स्ट्रीटवेयर बहुत खराब कर दिया है नाम, मतलब पूरा वो हो चुका है वो. सही है. स्ट्रीटवेयर से ज्यादा वो टी-शर्ट हो चुका है. टी शर्ट ही बिक रहा है. सब सच्ची में, सब हाँ. ओवरसाइज टी शर्ट बना के बेच रहे, खुद को बोलते हैं स्ट्रीटवेयर ब्रांड. हाँ, ठीक है. सही बात है. The weirdest DM you've ever received about your clothes? DMs usually I see myself. उसके अंदर जो आज तक सबसे weirdest था कि बंदे ने सीधा लिखा है बॉय मस्त एकदम झकास टी शर्ट है, क्या फिट है, क्या वो है. बॉम्बे का है. So
आई डोंट नो व्हाई ही रोट दैट, बट उसने काफी हिंदी में ऐसे लंबा सा पैराग्राफ भेजा था, बहुत फन सा था, और फिर उसके बाद उसने अनसेंड कर दिया था। उसको लगा नहीं यार प्रोफेशनल नहीं है ये बोलना। ओवर एक्सप्रेसिव हो गए. Crazy, crazy. If Nati Kab had a signature scent, what would it smell like? डियोर सवाज, Okay. स्पेशल इवेंट्स पे पहनते हो ना। Correct, of course. Again, this, I think you've already answered for this. A celeb you would love to see in Nati Kab. ईशान खट्टर, Ishan Gattar. Okay. I think I've been eyeing him out since he was there. I think he's a very good representative for the brand. मतलब I think he's the face for it. Okay. He's he has not been used to his full potential, I feel. Correct. Correct. He's quite talented, I also feel. Talented, छोड़ो भाई, the kind of personality he has, it's too strong. So, okay. Okay. Quite interesting. What's the biggest misconception about fashion founders? कि it's very easy thing to do. It's the most difficult thing to do. I think it's a very easy thing to do कि अगर हो भाई इसने कर लिया हम भी करेंगे. और ऐसा लगता है कपड़े का ब्रांड चालू किया है तो चलो मतलब इट्स अ रन अवे. नो, इट्स अ ब्लडी टास्क. It's a very big topic to be discussed, but ठीक है. सच्ची में. बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग. पीपल लुक डाउन अपॉन कि हाँ फैशन स्टार्टअप है, मतलब ये तो इजी वे आउट है. नो, इट इज नॉट एन इजी वे आउट. एक बार 1 महीना करके देखो, पता चल जाएगा. 90% अगर आप रील्स देखोगे, बिलियनियर्स ने सिर्फ 2-4 धंधों को ही बोला है कि सबसे खतरनाक है करने के लिए. वो है एक क्लोथिंग इंडस्ट्री और एक है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री. सच्ची सच्ची बात है. जितने भी बड़े बिलियनियर्स मिलियनियर्स इनको भी देखो, वो सारे के सारे यही बोलते हैं, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक. इतना कैपिटल इंटेंसिव है इतना. सो माय फियांसे शी रन्स अ रेस्टोरेंट ओनली. हाँ, आई नो कि एक्चुअली दीज टू इंडस्ट्रीज आर रियली नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. तुम दोनों उसी में ही हो. हाँ, हम दोनों उसी में ही हैं. क्या बोले ना दोनों को चैलेंजेस पसंद है तो परफेक्ट. बट आई नो व्हाट यू आर सेइंग. दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन कि ये इजी वे आउट हो गया. नहीं भाई, एक बार चालू करके देख लो, पता चल जाएगा. एंड नाउ मी एज अ फाउंडर हु हैज रन अ ब्रांड फॉर 2 years, मेरे को जाके बोलता है ना कि फैशन ब्रांड चालू करना है, मैं उसको बोलता हूँ अगले 2 साल का पहले मेरे को प्लान दिखाओ. तुमको क्या लगता है एक कलेक्शन लॉन्च कर दोगे और तुम्हारा ब्रांड चालू हो जाएगा? तो वो नहीं होने वाला. तुम्हारा जितना पैसा कैपिटल था तुम्हारे पास वो खत्म हो गया. मेरे को 2 साल का प्लान बताओ तो मैं तुमको थोड़ा सा हेल्प या गाइडेंस दूंगा. अदरवाइज डोंट टॉक टू मी. वैसा कचरा काम करना है तो डोंट टॉक टू मी. So like I know how difficult and how lengthy it can be to set up your fashion brand. आई थिंक इस मामले में मोटिवेशन और एक गलत मोटिवेशन देना में डिफरेंस होता है. यू मोटिवेट पीपल टू स्टार्ट थिंग्स, बट डोंट मिसगाइड और मोटिवेट देम इन अ वे वेयर दे फील कि यार अब शुरू कर दिया. व्हेन दे फील स्टक, देयर वाज नोबडी टू हेल्प अस. ठीक है, पूरी चीज जितनी भी आज तक की पूरी जर्नी है उसमें सब कुछ ठोकर खा खा के सारी चीजें कर करके ही सीखी है. ओवरनाइट सक्सेस ना मैं क्रेव करता हूं ना मुझे चाहिए. ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस इज नेवर लॉन्ग लिव्ड 100%. ठीक है, आई फील इट शुड बी, इट्स अ जर्नी. क्यों बोलते हैं जर्नी है? जर्नी ये नहीं होती कि हाँ भाई यहाँ से वहां तक पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. Correct. And unless you go on that journey and you don't, go through the whole thing, the whole process, so that you have an answer for each and everything in your life, tab tak it doesn't make sense. And overnight success usually hits your ego also. 100%. Human tendency, you can't help it. So that is something that I don't crave. And मैं अगर कहूँ कि हाँ I crave success every day, everyone does. ठीक है, मैं रोज उस चीज के ऊपर बोलता हूँ अपने आप को कि अब तो ये होना चाहिए ना, अब तो ये होना चाहिए. बट ठीक है, दिस इज व्हाट विल गिव यू पेशेंस एंड दिस इज व्हाट विल गिव यू मेच्योरिटी थ्रू आउट योर जर्नी कि हाँ ठीक है, ऐसे करने पे ये नहीं हो जाता, ऐसे करने पे ये नहीं हो जाता. आसपास की चीजें देख के बहुत लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, बट यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट योर जर्नी इज. ये लगाओ. Absolutely. आई थिंक अगर तुम बहुत ब्लाइंड साइटेड हो जाओगे आसपास की चीजें देख के, तो तुम्हारे डिसीजंस गलत होंगे. तुम डिसीजंस ऐसे लोगे जो तुम्हारे लिए शायद बैकफायर कर जाएं. सो आई थिंक उस पर्टिकुलर टाइम पे
इट शुड बी अ लॉन्ग थिंग, इट शुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग. उसमें हमारी नींव बहुत स्ट्रांग होती है. जब वो नींव स्ट्रांग होती है तो उससे हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग लिव्ड रहता है. करेक्ट, वेरी ट्रू. सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क. एंड वेंचर शुरू करने तो इज लाइक इजी यार. यू हैव एन आइडिया, यू वर्क ऑन इट, यू गो फॉर इट. मेरे खुद के इतने दिमाग में इतने वेंचर्स हैं, मैं सारे स्टार्ट करूंगा बट विद टाइम. विद टाइम, ऑफ कोर्स. ठीक है. I have 3 ventures going on right now. I'll work on 3 of them simultaneously. एक के ऊपर I have focused. 2 are autopilot. Let them run. But always strategize in a way where you don't feel कि हाँ you get stuck कहीं पे कि यार क्यों नहीं हो रहा. होएगा. वेरी ट्रू. With time पक्का होएगा. करेक्ट. Give it time. पेशेंस होना चाहिए. हाँ, वो पेशेंस मेरे में भी नहीं है. हाँ हाँ, मेरे में भी नहीं है. किसी में भी नहीं होती. सही बात है. बट एट द सेम टाइम वो पेशेंस अगर है एंड यू टेंड टू सक्सीड फॉर इट, तो भाई यू हैवंट सीन व्हाट यू गोइंग टू गेट. तुम्हारे को उनका प्लान ही नहीं पता कि वो क्या दे सकते हैं. सही बात है, सही बात है. तो कोई मोस्ट पीपल बातें पहुंचते ही नहीं है ना, वो लोग पहले ही बैकआउट कर जाते हैं. तो वो एंड रिजल्ट तो देखो तो सही कि क्या मिल सकता है, बातें तो वो लोग पहुंचते ही नहीं है. हाँ, परसिस्टेंस इज समथिंग विच कैन टेक यू ऑन अ लॉन्ग रन. करेक्ट. एंड व्हाट यू सेड अबाउट जर्नी, कि इधर से उधर तक नहीं है. अ जर्नी इज अ जर्नी इन आवर इंडस्ट्रीज और एनी ब्रांड इंडस्ट्रीज इज अ जर्नी वेयर दैट हैज नो एंड पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने डियोर के साथ कोलैब कर भी लिया तो वो आपका जर्नी का एंड थोड़ी ना है. नहीं नहीं यार, इट्स एन एस्पिरेशन कि वो वहां तक जाना है. बस उसके बाद एक और आ जाएगा. फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी आपका एंड नहीं होता जर्नी. हाँ, तो सबसे बड़ा बात है कि व्हेन इट इज अ जर्नी यू हैव टू कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग. नॉट एक्सपेक्ट कि बस यहाँ पे मेरा खत्म हो गया. वो हो ही नहीं सकता. खत्म हो गया देन यू आर क्वाइट लेड बैक, यू कैन नॉट रन अ ब्रांड. करेक्ट. आई फील सो. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर रैपिड फायर राउंड. फिट और फैब्रिक, व्हाट मैटर्स मोर? फैब्रिक. ओके, व्हाई सो? गंदे से फैब्रिक में बहुत अच्छा फिट दे दूं, बॉडी टाइप ही नहीं है फिट, लेकिन उस बंदे के हिसाब से वो फिट अच्छा है, पर वो लगी अच्छा नहीं रहा ना. एट द एंड ऑफ द डे तो अभी अगर ब्लैक टी शर्ट आपने पहनी है, मैं डिज़ाइन हटा दूं, फिट बहुत अच्छा है, ठीक है, सारा कुछ है, बट इट एड्स एन एसेंस टू इट. करेक्ट. करेक्ट. सो उस तरीके से. अगर फैब्रिक ही अच्छा नहीं होता तो कोई पहनता ही नहीं शायद, डिजाइन कितना भी. और फैब्रिक से ही फिट आता है ब्रो. फैब्रिक गड़बड़ है तो फिट तो अचीव ही नहीं हो सकता. हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक व्हेन वी मेंशन फिट ओवर वी मीन पैटर्न, डिजाइनिंग पैटर्न ऑफ इट, कि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैब्रिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द फिट. फैब्रिक के हिसाब से यू डिसाइड ऑन द पैटर्न्स. ओके. सो इट्स ऑलवेज द फैब्रिक फर्स्ट देन द पैटर्न. अगर वो एकदम कड़क फैब्रिक है तो वो फॉल ही नहीं करेगा. उसके लिए उसकी कैटेगरी अलग है जो बनानी है. अगर वो मलमल सा फैब्रिक है तो वो आराम से अलग फॉल करेगा. सो फेयर इनफ. ठीक है, डन विद द रैपिड फायर. इट वाजंट रैपिड फायर बट ठीक है. यू नो, विद मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स इट वाज लाइक दैट ओनली टुडे. अच्छा, हर गेस्ट ने रैपिड फायर चालू किया बट फिर उसके बाद आधा घंटा तो रैपिड फायर में ही चला गया. सो streetwear in India is still carving its space. What does Indian streetwear mean to you? I know it's like now we have lost the relevance thoda with streetwear in India, but still, according to you, where does streetwear stand today? यार स्ट्रीटवेयर स्टैंड्स इन इंडिया अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो आई थिंक बहुत सारे ब्रांड्स खुल रहे हैं. बहुत सारे you can see the shift in the West also that it's happening, that they are going more for tailored stuff now. ठीक है. तो इंडिया यूजुअली अडेप्ट 2 years later. करेक्ट. इंडिया में वापस वही चीज़ें आएंगी. बूट कट्स गई थी, वही है वापस, जिसके बारे में हम सारे पढ़ गए हैं. बट स्ट्रीट वेयर ऑल टुगेदर इन इंडिया आई थिंक इट्स अ प्रीमियम मार्केट नाउ. आई थिंक यू शुड कॉल योर सेल्फ प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड and just end it there. Don't call yourself a streetwear brand. Jack and Jones is also doing t-shirts. There are XYZ more brands who are doing t-shirts and stuff. They are not calling themselves as streetwear brands. streetwear brands. Right, absolutely. So Indian market के हिसाब से I think वो तो burnout हो चुका है. उसका एक बहुत अच्छा origin था when it was actually, you know, सब बहुत rare लोग दिखते थे जिन्होंने जॉर्डन्स पहने हुए हैं, उन्होंने ये पहना हुआ है. There's a rare one that he's wearing. There's a collab that he's wearing. So at that time, streetwear was very relevant for everybody. Now it's not something we call streetwear. I think
It's not streetwear anymore. It's morely people launching baggy clothes and then calling street fashion. बैगी क्लोथ वर नेवर स्ट्रीट वेयर बाबा, मतलब एज इन उसमें भी कैटेगरी थी कि वो उस वक्त ट्रेंड में आई चीज. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वॉफल्स बीच में बहुत उठा था इंडियन मार्केट में, Yes. ठीक है. वो वॉफल मार्केट ऐसे उठी थी कि एक के बाद एक आपको वॉफल ही वॉफल दिखेंगे हर जगह, हर जगह, हर मार्केट में एक वॉफल की दुकान खुली हुई है, ठीक है. सो उसी तरीके से ये ट्रेंड आया, ठीक है. अब ये ट्रेंड चला जाएगा, फिर वो आएगा. बट लॉन्ग रेजिस्टिंग ब्रांड जितने भी हैं, दे नेवर label themselves as something as they cater to this particular thing. They always cater to people in a way where they are saying that we make designer clothes for you, you wear it, this is a brand, and you decide on what occasion and when and in which situation you wish to wear them. Simple. Makes sense. ठीक है. तो streetwear altogether I think is a different segment altogether. उसका स्टडी, उसकी सारी चीजें बहुत अलग है than what we actually have right now. अब it's more common, मासी में चला गया सारा कुछ. सही बात है. So वही है कि I think that is a very strong label that is being given to people. Streetwear जो हैं थे या जो भी है, whatever they call themselves or what, in whatever capacity they are, I think उनका long association यही रहेगा that they are a premium designer wear label that they are presenting themselves as. वो शिफ्ट भी दिखेगा आपको सारे ब्रांड्स में, हमारे में भी दिखेगा, ठीक है. आज बंदे सारे टी शर्ट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी बाइज. वो शिफ्ट आएगा. हमने किया तो वो शिफ्ट. तो करेक्ट है ना. तो जैसे ही वो ट्वर्क आएगा ना, पीपल विल ट्वर्क देमसेल्व्स इन अ वे वेयर वो धीरे धीरे तुम्हारे को दिखेगा कि सरकते 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 पहुंच गए वहां. सही सही. हमने एक्चुअली वही रीजन से किया कि यार सब टी शर्ट्स बेच रहे हैं, मैं किन किन के साथ compete करूं, मैं नहीं कर सकता. एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज मतलब जस्ट मेकिंग टी शर्ट्स, सेलिंग इट एट 500 रुपीज ऑन Amazon, 700 रुपीज. मैं किन किन के साथ उस रेंज में compete करूं. मैं बोला नहीं, हम ओनली डेनिम पे फोकस करेंगे. टी शर्ट भी हम रखेंगे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मैं टी शर्ट बनाना बंद कर दूंगा, रहेगा टी शर्ट, पफ प्रिंट, वो सब रहेगा. बट माई मेन फोकस इज डेनिम. Not street denim, just denim. Not denim that only young people can wear, denim that elders can also wear. Correct. Like that is the shift we also like took because we understood ये t-shirt long lasting तो नहीं है यार. ये लॉन्ग लास्टिंग की बात नहीं है ब्रो, बट द थिंग इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड ऑल्सो, दैट वो ऑडियंस कब तक उस ब्रांड को सेलिब्रेट कर रही है, ठीक है. तो लिवाइस भी आज की डेट में अगर बोला तो डेनिम्स के लिए ही जाना जाता है ना. तो ऐसे बहुत ब्रांड्स हैं जो टी शर्ट्स के लिए ही जाने जाएंगे. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज समथिंग दैट इज वी नीड टू लीव इट ऑन द ऑडियंस टू जज. राइट. ठीक है. आज बैगी है, कल नॉर्मल फिट हो जाएगा, लेकिन टी शर्ट नहीं हट सकती. राइट. इट्स एब्सोल्युटली. द गो टू कंफर्ट प्रोडक्ट दैट एवरीबडी इज गोइंग टूवर्ड्स ना. तो वो चीज कैन नॉट डाई आउट. बट उसको वो इवॉल्व होएगा. वो जिस तरीके से भी होगा, उसमें ब्रांड्स किस तरीके से उसको ट्वर्क करते हैं, किस तरीके से अपना वे आउट ढूंढते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देमसेल्व्स. हु डू यू थिंक इज नाटी का आपका एकदम कोर ऑडियंस? आई थिंक वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा दिखना है किसी पर्टिकुलर दिन पे या कोई सिचुएशन पे, जो मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ. मेरी कोर ऑडियंस एट द एंड ऑफ द डे वही लोग हैं जिनके अंदर आज भी तैयार होने की और खुश होने की, पहन के अच्छी वाइब फील करने की आदत है, या whatever you want to say. Right. So that is my core audience. Anybody who takes out our product from the rack, अगर वो वाइब कर रहा है ना उससे, वो तभी ले रहा है. वो वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे तूने कहा कि you are a big Natty fan, you saw that t-shirt, तू connect हुआ. When you connected with that and then only you got that product, be it whatever scenario, whatever situation that was, you got it. Yes. Correct? So मेरी ऑडियंस ये है कि मैं जब उनको अपने कपड़ों में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो स्पेशल इवेंट्स पे ही मुझे दिखता है. ठीक है. आई वेंट टू स्लिंक एंड बादोद, आई सॉ मेनी टी शर्ट्स. ठीक है. तो खुशी होती है देख के कि बंदा जब वो ले रहा है ना, तो उसको वो पर्सनालिटी सारा कुछ उसके पास है और वो उस चीज को सेलिब्रेटरी तरीके से ही पहन रहा है. करेक्ट. सो आई थिंक मेरी ऑडियंस हर जगह है, बी इट वो किस पर्टिकुलर डिजाइन से रेजोनेट करता है.
करेक्ट। ठीक है, अगर उसको किसी को हंसाना है तो वो सेक्सुअल वाली ले लेगा। अगर उसको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पसंद आ रहा है कि यार ये विंडो वाला डिज़ाइन बहुत सही है, मेरे को ये पहनना है, सही है, मैं क्लबिंग में पहन लूँगा, बढ़िया टी शर्ट अच्छी है, ले लो, वो मेरी ऑडियंस है। ठीक है, या वो एक छोटा सा बच्चा है, AYCS में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। राइट राइट। वो उसने आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल टी शर्ट ली थी, वो है टिंगू सा बच्चा, बट लंबी सी ऐसे टी शर्ट पहन के आया था, सो ही एक्चुअली रेजोनेटेड विद दैट फ्रॉग वाला टी शर्ट। सो वही है कि कौन सा किस डिजाइन से रेजोनेट करता है, दैट इज व्हाई देयर इज नो पर्टिकुलर डिजाइन थ्योरी दैट वी फॉलो, इट्स जस्ट दैट वे वी ड्रॉ इट इज द मेन डिजाइन यूएसपी ऑफ अस। हमारी हर एक चीज के अंदर यू विल सी अ वे ऑफ पर्टिकुलरली ड्रॉइंग दैट प्रोडक्ट। कोई भी टी शर्ट उठा लो, सारी इकट्ठी रख लो, जितनी भी हैं, वन टू ऑल, it's not the name, it's not the branding, it's nothing, it's the way that we draw it, it's the way that we design it. What is so special about it? If you had to explain in 1-2 words to the audience, what is so special about your designing? And how is it different from other people who draw and design? मैं ये प्लांटर उठा रहा हूँ और प्लांटर को ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, सेम टू सेम मैंने स्केच कर दिया। इसको एक रियलिटी में बना सकते हैं, इसको फोटोशॉप करके मैं स्मज तरीके से बना सकता हूँ, मैं उसके हर एक एलिमेंट को एनहांस करता हूँ। ठीक है, हमने एक लीफ बनाई, लीफ के अंदर एक और लीफ बनाई, सिर्फ आउटलाइन दी, ठीक है, वो एनहांस हो गई। ओके। ठीक है, या तो हम जैसे अगर हम लोग ये माइक बना रहा हूँ, माइक के अंदर ये पूरा एरिया जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, जहां जहां पे भी देयर इज एन आउटलाइन टू इट, वी ड्रॉ एन इनर लाइन टू इट, दैट्स हाउ द होल यूएसपी स्टार्टेड। ओके। और ये स्टार्ट कैसे हुई थी, आईपैड लेके आया था, बना रहा था, सबसे पहला डिजाइन हाइपकिल्स ही बनाया था, वर्कड वंडर्स। बनाया, बनाते बनाते मैंने कहा यार आईपैड था, फन था, कुछ पेपर पे तो था नहीं कि रब करना पड़ेगा साहब, मैंने बनाया, अंदर बनाया, मैंने कहा यार ये इनहैंस हो रहा है, दिस विल बी इट। मैं कह रहा हूँ ना, एनीथिंग दैट इज डन लाइक दिस यूजुअली सेल्स। सो वो बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू था, वो डिजाइन थ्योरी वो बनती गई, वो बन ही गई। फिर नाउ ध्वनि इज अ लीड डिजाइनर फॉर अस, वो जिस तरीके से अब उसका भी फ्लो वैसे बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा बना देती है। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज हाउ द होल स्ट्रक्चर ही बैठ गया। हाँ, स्ट्रक्चर ही बैठ गया, और हर डिजाइन हम इसी तरीके से बनाते हैं, वी कॉल इट द नाटी वे। वो पूरी टीम उसको बोलते हैं कि नाटी लग रहा है। अब अगर हम नॉर्मल ऐसे प्रिंट डाल देंगे ना, वो नाटी नहीं लगेगा हमें, हमारे को अंदर से झिझक होगी कि नहीं ये डिजाइन हमारा नहीं है। करेक्ट। कभी ढंग से अगर यू विल गेट टाइम ना, सो एक बार ऐसे जितनी भी टी शर्ट या डिजाइन होंगे उनके स्क्रीनशॉट लेके भी अगर आप सारे इकट्ठे लगाओगे, यू विल सी अ प्रॉपर डिजाइनिंग वे ऑफ इट। यस, आई अग्री। सो जितना भी ग्राफिक्स है ना आप लोग का, उसमें मेरे को रिसेम्बलेंस दिखता है। जितना भी ग्राफिक्स हो, अभी आप भले ये टी शर्ट ले लो, उस साइगाओ करके एक टी शर्ट था वो ले लो, टेक मी टू द चर्च ले लो, all of those designs have a similar designing, drawing method. I can see that, like it's quite visible. बस चीजें हट जाती है जब वो टेक्स्ट आ जाता है। I'm kidding यार। Anyway, a lot of creators dream of starting their own label. Where do you think most of them go wrong? Very deep question. I think बाहरी दुनिया से बहुत फर्क पड़ता है। Okay. प्लानिंग के बिना, if you're doing things, if you're not seeing at least 2 or 3 months ahead of you in terms of your production, in terms of your design, in terms of your financials, and you're just going through it कि बस अब जाना है, कर रहे हैं, that is wrong. That is where they go wrong. The anticipation of it working out is a 50-50 until it happens. हमने एक कलेक्शन निकाली, वो चलेगी हाँ भी ना भी। करेक्ट। चली तो क्या होगा, नहीं चली तो क्या होगा। करेक्ट। लोग चलेगी सोच के बैठ जाते हैं, नहीं चली तो कैसे डील करना है वो नहीं सोचते। यस, दैट इज आई थिंक वन थिंग दैट गोज रॉन्ग, कि एंटिसिपेट करो, ये हुआ, चली नहीं चली, ये 2 सिचुएशंस है। इन दोनों सिचुएशंस में चल गई तो सेलिब्रेटरी कि अब उसके बाद हम ये करेंगे, नहीं चली तो उसके बाद भी यही एटीट्यूड होना चाहिए कि उसके बाद भी हम यही करेंगे। सही बात। हमारा हर शूट खतरनाक नहीं जाता, हमारा एक शूट बहुत अच्छा जाता है, ठीक है,
ऑडियंस बहुत एक्सेप्ट करती है, दूसरा नहीं जाता, तो क्या अगले वाले में हम छोड़ देते हैं? नहीं, करेक्ट, बट अगले वाला हमारा प्लान्ड होता है। मेक सेंस ब्रो। तो वो प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड एंटिसिपेशन शुड बी ऑलवेज 50-50। पॉजिटिव माइंडसेट, यस, 90% जाएगा ही जाएगा, अच्छा हमेशा होता है हमारा। बट बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान नहीं, कि उसको एक्सेप्ट करने की आप में एबिलिटी है, उसको डील करने की एबिलिटी है, ठीक है। प्लान ए इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान, प्लान बी इज ऑलवेज यूजुअली टू सपोर्ट द प्लान ए। सो उसको अगर वो नहीं चला तो किस तरीके से चलाना है शुड बी योर थिंग। करेक्ट। समझ रहे हो? तो दोनों चीजें 50-50 लेके चलनी चाहिए। एंड इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, आइदर लर्न बिजनेस इन अ वे, कॉज यूजुअली क्या होता है जब एक बंदा क्रिएटिव होता है, ठीक है, और एक बंदा बिजनेस वाला होता है, अगर बंदा सपोजली ज्यादा क्रिएटिव है तो वो उस चीज को ज्यादा तवज्जो देगा, जो बंदा बिजनेस में ज्यादा ऊपर है वो उसको ज्यादा तवज्जो देगा। एन अमैलगमेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इज अ परफेक्ट फाउंडर, ठीक है। सो मैं क्रिएटिव था, मेरा क्रिएटिव कॉल था कि मेरे को ऐसे कपड़े बनाने हैं, पेरिस में बेचना है, ये करना है, वो मेरा क्रिएटिव साइड ऊपर था, बिजनेस साइड नीचे था, ठीक है। फिर उसका बैलेंस बनने में टाइम लगा। जब वो बैलेंस बना, धंधा कैसे सीखा? धंधा सीखा स्टूडियो खोल के, सारी चीजें, कि देयर शुड ऑलवेज बी समथिंग दैट शुड सपोर्ट योर थिंग। फाइनेंशियली तुम हर वक्त देख नहीं सकते कि तुम, बिकॉज यूजुअली आइडियाज एंड एवरीथिंग यूजुअली टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। करेक्ट। अगर मैं आज एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मेरे को बैंड्रा में 10,000 स्क्वायर फुट की स्पेस खोलनी है, मेरा ब्रांड तैयार है, पर मेरे फाइनेंसेस अगर रेडी नहीं है तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस चीज में मैं ये कहता हूँ कि अगर क्रिएटिव हो तो बिजनेस सीखो, बिजनेस है तो क्रिएटिव ला कर किसी को सीखो। क्रिएटिविटी इज नेचुरल, आई फील बिजनेस इज ऑल्सो नेचुरल, बट बहुत लोग सीख के भी बना लेते हैं, करेक्ट। सो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। व्हेन देयर इज अ बैलेंस दे आर परफेक्ट, दे कैन रन एनीथिंग। आइदर ब्रिंग अ co-founder, get somebody on board or something like that, but structure it in a way where you feel कि हाँ ये साइड मैं देख रहा हूँ, ये साइड ये देख रहे हैं, सही बात है। correct. So I have my support, I have my DVD. Watch DVD. They Varun Dhoni. So these people are my DVD people, they are my people. I think they own the brand and they are the real pillars. So these are my people, they know the brand from 0 to 100. Okay. They've been through that journey, ठीक है। सो उसमें कई, जहां पे हम जो भी जैसे भी अटकता है, हम सारे एक दूसरे को तक 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 करके हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक फाउंडर्स को मेरा ये सजेशन है, एंटिसिपेट एंड क्रिएटिव एंड बिजनेस को इक्वल लाइंस पे रखो। दैट इज हाउ एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस इन टाइम। एकदम से नहीं होगा, टाइम तो लगता ही है, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट वन टॉपिक दैट मोस्ट पीपल डोंट टॉक अबाउट। ओके, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ मार्जिन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन फैशन? मार्जिन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कह रहा हूँ तीनों ही नाइटमेयर है। बट मैन्युफैक्चरिंग आई फील पर्सनली इज द वर्स्ट। करेक्ट, आई सेकंड यू ऑन दैट, यस। इतना टाइम लगता है, इतना डिलेज होता है। मैं तो जेन्युइन बोल रहा हूँ कि अगर कोई उस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेल कर चुका है ना, तो हैट्स ऑफ है, ठीक है। सही बात है एक्चुअली, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिवली तुम सोच के बैठे हो ये प्रोडक्ट ऐसा निकल के आएगा, तुम्हारा सैंपल आता है, तुम एकदम हो जाते हो कि यार ये क्या आ गया। देन फिर कुछ नया बनाते हैं, ठीक है आ गया, हमने कर दिया, यार ये बन गया, अब चलो इसको बनाने के लिए डालते हैं मार्केट में, डिले आ गया। किसी एक प्रोसेस में वो प्रोडक्ट फंस गया जी, प्रिंट निकल गया जी, वॉश में खराब हो गया जी, प्रेस में खराब हो गया। इट्स समथिंग विच इज अ नाइटमेयर। या सो आई थिंक इनमें से सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज योर, थर्ड इज मार्जिन्स। मार्जिन्स इज समथिंग दैट कैन बी मैनेज्ड, या आई आल्सो फील सो। बट ये मैन्युफैक्चरिंग तो इज, जो भी आपने लास्ट में बोला ना कि कभी इधर अटक गया, कभी उधर अटक गया, मैंने मेरे टीम मेंबर्स को अब तो ऐसा समझा दिया है कि जब तक कोई प्रोडक्ट हमारे ऑफिस में लैंड नहीं हो जाए ना, तब तक उस पर काम करना ही मत चालू करो। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया,
पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम साला आज बोल भी दे कि हम ये संडे को कुछ लॉन्च कर रहे हैं, हमने उसका पोस्ट बना दिया, मेहनत कर दी, सब कर दिया, और आया ही नहीं प्रोडक्ट, तो जो मोस्ट लाइकली नहीं आएगा, मोस्ट लाइकली अब तो हम वो मान के ही चलते हैं कि अगर ये डेट दिया है तो 1 महीना आगे का पकड़ लो. चलो, आई एम हैप्पी दिस इज नॉट जस्ट अस. या 100% ब्रो, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. हमारा भी यही होता है. हम लोग यूजुअली वी गेट द सैम्पल्स डन, उस पर हम शूट कर देते हैं. सैम्पल में कोई एक चीज़ मिस हो जाती है, फिर हम फंस जाते हैं. सही. ठीक है, फिर उसके बाद जब हम उसका पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, कंटेंट पूरा, मार्केटिंग टीम पूरी मैच हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, तो वी आर गुड टू गो. करेक्ट. बट वो बस उसके लिए प्रोडक्ट हाथ में आ जाए, फिर मैं अपना मार्केटिंग टीम को डालता हूँ उस पर. तो वही है कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर अटक सकती है. सर पल्ले कट गए, सारे पल्ले कट चुके हैं, सच्ची में ब्रो. बट वो फैब्रिक जो बिछा था ना, उसमें वो पल्ले कटने के लिए वो फैब्रिक चेक नहीं हुआ, तो उसके अंदर ना बहुत सारी लाइंस अटक गया. प्रोडक्ट सैंपल तो बन गया, बट प्रोडक्शन में अटक गया. सो इट्स एक्चुअली अ नाइटमेयर. अगर उस चीज को, इट्स अ डिफरेंट एलिफेंट इन द रूम ऑल टुगेदर, जिसको जाकर भाई तुम्हारे को एड्रेस करना पड़ेगा. यू हैव टू पुट वन पर्सन देयर, जो कि आज तक कभी ढंग से हो ही नहीं पाया. सही बात है, सच्ची में. आई थिंक ईच एंड एवरी ब्रांड आउट देयर इज गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम. हर किसी के लिए है, यस. सिर्फ हम नहीं है. और आई थिंक वो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है ही है. यस. मैन्युफैक्चरिंग का इशू तो है. या हाउ डू यू अप्रोच प्राइसिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द आर्ट ऑफ द ब्रांड? जी, हम लोग जो प्राइसिंग करते हैं, इट्स नेवर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिजाइन इट इज. ठीक है, हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि एक में ज्यादा कमा लिया, एक में कम कर लिया. ओ सॉरी एक में ज्यादा कर लिया, एक में कम कर लिया, एक में ज्यादा कर लिया, एक में कम कर लिया. इट्स लाइक दैट. सो उस वाले सिनेरियो के अंदर हम लोग जब भी प्राइसिंग देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो हमारा कंज्यूमर खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा. अगर वो खरीद पाएगा तो हम उसको उसी उसमें करते हैं. हमारे को पता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत महंगा बन गया है, तो हमने जब जब उसको हमारे कंज्यूमर के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस करा है ना, वो रुका है, मूवमेंट में रुका है. धीरे 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 मूव करेगा, एकदम नहीं जाएगा. जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं वो एकदम से जाएंगे प्राइसिंग के मामले में. सो उसमें हम लोग कभी भी डिज़ाइन के हिसाब से प्राइसिंग नहीं. हम लोग अपने ऑडियंस की वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वो लेगा नहीं लेगा, उस पैरामीटर्स पे जज करते हैं. ओके. ठीक है, वी हैव सेट आवरसेल्व्स इन अ वे कि हमारे को पता है कि हमारी यही 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 कॉस्ट जाएंगी. सो मतलब जैसे अदर ब्रांड्स का कैसा रहता है, वो लोग का एक फिक्स्ड वो रहता है 4x फॉर एग्जांपल, कि 500 रुपए की चीज़ बिकी तो 2000 में बेचनी है, 1000 की चीज़ बिकी तो 4000 में बेचनी है. ये पैरामीटर्स कैसे जज करते हैं लोग, मेरे को नहीं पता. मतलब पहले मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग सीधा 4x कर रहे हो, उसके बीच में तुम कौन सी कॉस्ट ले रहे हो. तुम्हारी सैलरीज हैं, तुम्हारी मार्केटिंग है, तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारा रेंटल्स हैं, तुम्हारी इतनी सारी चीज़ें हैं. वो 4x में कैसे कंप्लीट कर रहे हो? मतलब सीधा 4x कैसे कर रहे हो? अगर 4x कर रहे हो, वो 500 रुपये का प्रोडक्ट बन रहा है, वो 4x पे अगर बिक रहा है, तो क्या वो वैल्यू फॉर मनी है कस्टमर के लिए? वो धड़ल्ले की तरह बिकेगा कि मतलब वो क्वांटिटी में बिकेगा इतना कि तुम ये सारे स्टैंडर्ड्स को कर लोगे? नहीं ना. सही बात है. मैं खुल के बोल रहा हूँ कि हम 4x 5x वाली इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते. हम पहले अपने एक्सपेंसेस देखते हैं कि हमारा ये वाले शूट में कितना लगा. हमारा यूजुअल बजट ऑन एवरी शूट इज यूजुअली 4 to 7 लाख के बीच में. दैट्स व्हाट वी प्लान. और उसके अंदर हमारे को नंबर ऑफ गारमेंट्स फिट करने होते हैं. उस नंबर ऑफ गारमेंट्स में कितनी क्वांटिटी है वो हमें फिक्स करनी होती है. कि अगर सपोजिटली वो 7 लाख का शूट है एग्जाम्पल, और हमने 1000 प्रोडक्ट बनाए हैं, उस शूट में हमने 100 प्रोडक्ट शूट करे हैं और उनकी क्वांटिटी 100 ईच है. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरी मैथ करी है, तो 100 रुपए पर गारमेंट उस शूट का चढ़ जाएगा. वी डिवाइडेड इन दैट वे. ठीक है, और हम लोग मैसिव जाते हैं अपने शूट्स में, सारी चीज़ों में जितना भी है. इट्स ऑलवेज अनयूजुअल, इट्स ऑलवेज बिग, इट्स ऑलवेज लाउड. सो वो जो पूरी कॉस्टिंग है ना, हम लोग इस तरीके से डालते हैं कि अगर कैक हमारा इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो वो उसके अंदर डलेगा भाई. वो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है कि तुमने 500 रुपए की टी शर्ट बनवा ली तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई ना. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट विच आर अनसीन. तो वो तुमने डाला, उसके बाद तुम 4x करके दिखाओ. नहीं, फिर नहीं हो सकता.
नहीं फिर तो ऑफ कोर्स, फिर तो वो तो भाई सो पहले कॉस्ट निकालो, राइट। फिर अगर उसको 1x करना है, 2x करना है, 3x करना है, you're selling on aggregators, तुम्हारे को अपने लिए थोड़ा सा वो रखना है, पैरामीटर रखना है, ये सारी चीजें प्राइसिंग की तभी डिसाइड हो सकती हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट बनते ही डिसाइड नहीं हो सकती। तुम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू देखोगे, कस्टमर के लिए वैल्यू देखोगे, और अपने कस्टमर के लिए खर्चे देखोगे कि तुम्हारे क्या खर्चे हैं। उसको दिखाने के लिए हमने इतना पैसा खर्चा, उसको ये मार्केट करने के लिए इतना करा, उसको ये करने के लिए इतना करा, सारी चीजों में पैसा लगता है। तो उस तरीके से यू हैव टू गेट द कॉस्ट आउट, एंड दैट इज हाउ यू गेट इट। देन यू एक्सिट वट एवर तुम्हारे ऑडियंस के हिसाब से और तुम्हारे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से तुम्हारा परफेक्ट। फेयर पॉइंट। समझो कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, जब तुम एक नए मैन्युफैक्चरर के पास जाते हो तो तुमसे 1,000 रुपये लेता है। जब वो कहता है कि क्वांटिटी दोगे, करोगे काम बहुत, तो फिर देखते हैं, फिर क्रेडिट लाइन मिलती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, विद टाइम आती है वो चीज़। तो उसी तरीके से शूट्स में भी आता है वो टाइम, कि हमने स्टार्टिंग में तो मैंने 11-11, 10-10 लाख रुपए भी हमने डाले हैं कि हम लोग एक्सट्रीम जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको 7 पे लेके आए, फिर हम उसको 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, उसको कितने स्मार्टली कर सकते हैं, वो चीज़ है। सो दैट इज हाउ यू कट डाउन ऑन योर कॉस्ट। सो वो चीज़ प्लानिंग में होनी चाहिए, बट इट टेक्स टाइम यार। या 100%। Everything takes time, everything takes you know a learning to decrease that particular value that you're paying for it. राइट। I think content is god these days. ठीक है, सो अगर तुम कंटेंट पे नहीं खर्च रहे तो तुम पीछे रहोगे। 100%। ठीक है, और कंटेंट में जितना डालोगे उतना कम है। ठीक है, सो ऑल टुगेदर कंटेंट कैन गेट यू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब तो ऐसा मीडियम हो गया ना कि अगर आज हम यहाँ कुछ बहुत भयंकर बाप कंटेंट बना दें, वो अगर वेस्ट में किसी को हिट कर गया तो क्या होगा। मेक सेंस। सो कंटेंट इज अ वेरी इन्वेस्टेबल सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस। कंटेंट में इन्वेस्ट करो, इट्स अ मार्केटिंग कॉस्ट। किसी और चीज में डाउन जाओ, बट कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज मत करो, इज व्हाट आई फील। Definitely something to learn. What platforms do you think work the best for Natika? D2C or offline collaborations? आई थिंक मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, जो तुम कहते हो ना कि लाउड है, सारा कुछ है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो ऑडियंस है ना मेरी, वो जब तक उसको हाथ में फील नहीं होएगा, वो प्रिंट के ऊपर हाथ नहीं फेरेगा, या वो इस मेटल बैच को ऐसे हाथ नहीं लगाएगा कि क्या प्रोडक्ट है, तब तक मेरे को नहीं लगता कि उसकी वो गट फीलिंग कहेगी कि मुझे लेना है। बट वो जैसे ही देखेगा ना वो लेगा। तो मेरे को लगता है कि पर्सनली मेरे लिए ऑफलाइन ज़्यादा एक्सपैंडेबल है, क्योंकि मैं वहाँ पे ना एक ब्रांड का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। आई हैव ऐसे प्लान्स दैट आई कैन एक्चुअली, आई एम नॉट बीइंग वेरी out there, but I can actually turn tables in terms of how a brand represent themselves in India. This is a very strong statement, but at the same time, I have guts to do it, Yeah, I'm sure you do. and I have all the resources to do it, and I think I will do it within good span of time. Definitely. Because the thing is that India को अब वो बोरिंग रिटेल और उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। We have started this is our first step. We've opened our first Mumbai store. This was our first step. Going forward, it's not just going to be expansion. It will be something beyond that. It will be something that you're going to live it out in a way where you experience each and everything and you say, यार, कुछ तो किया है. 100%. That is like what we are all aiming for. So that's the thing. That's what I believe in. There needs to be somebody who needs to break it all through, and वो करेंगे अब. करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे. मुंबई was the first. मुंबई is the first. दिल्ली अब second है. अच्छा, very nice. फिर देखते हैं और क्या क्या है. Right. I have plans. Of course, bro. Of course, and you should also. Yeah. And touchwood होए भी सब अच्छे से execute. Yeah. Crazy. See, we've covered mostly everything from our podcast. Just one thing that we want to understand as brand level पे, because I'm also in the same space. जब आप online ये सारा products देते हो, COD में कितना RTO का problem होता है, and how do we eliminate that problem? We have also faced the same thing. ठीक है, हमने भेजी टी शर्ट, बंदे को टी शर्ट मिल गई, वापस आई है कैंची.
ठीक है, हमने भेजी टी शर्ट या हमने भेजा जॉगर, वापस आया एक लेडीज का 200-250 रुपये का सूट, ठीक है, बट प्रोडक्ट मिल चुका है कस्टमर को, देव बिन पेड आउट, उन्होंने पे भी करा है, बट हमारे को ये चीज़ वापस आई है, ठीक है. दिस हैज़ हैपेंड विद अस टू. whenever you get a COD, either you put a fees on it, ठीक है, कि आप 250-300 रुपये दे दो, you lock the person then and there, partial payment. partial payment, Okay. either of these two, like this one, or the second option is that जब भी आपको कोई COD order आए, confirm it on the call, कंफर्म तो करते हैं, फिर भी बहुत इश्यूज आता है. but you have to fix one particular delivery partner. You can't take somebody who is an aggregator of couriers, तो वो नहीं कर सकते तुम. हम क्या यूज करते हैं, वी हैव 3-4 डिफरेंट कोरियर्स, सब हमारे साथ शॉपिफाई पे नहीं आते क्योंकि उनकी वो लोकल हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी सर्विस बहुत बाप है. वी हैव मर्चेंट कोरियर, वी हैव SGL, वी हैव तिरुपति, देयर आर अ लॉट ऑफ देम. So using these guys for your COD and stuff is better option, and for your everyday wala couriers also. You're going to pay a premium, but at the same time you have a direct contact of that person. तुम लोग फिर वो बार बार ईमेल नहीं डालोगे, सर वी हैव ये देखो ये प्रोडक्ट था, ये आया है, ये इसके ईमेल का फॉलो अप नहीं ले सकते तुम. नहीं ले सकते. तो इट्स अ पेन इन द एस. कैमरा लगा के रखा हुआ है अनबॉक्सिंग के वक्त, बोलते अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाओ कि वो खोलने के बाद यही निकला उसमें से. करेक्ट, वही तो कह रहा हूँ कि वो उसके अंदर इतनी सारी जो सिनेरियोज है ना, उसमें यही बेटर ऑप्शन है दैट कमर्शलाइज हो गई है ये सारी चीजें, बट एट द सेम टाइम अभी भी आई फील कि जो ये वाले कोरियर वाले हैं, दे वर्क ऑन अ बेटर बेसिस. ओके. बिकॉज तुम किसी का जाके गला पकड़ सकते हो कि भाई मेरे को टी शर्ट के बदले में लेडीज सूट आया है, नॉट दैट. सो यस, बट ऑन दैट नोट ऋषभ भाई, व्हाट अ ग्रेट चैट. मजा आया. बहुत मजा, सच्ची में बहुत मजा आया. आई वाज तो वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ओनली, बट So आफ्टर sweet, दैट man. सच अ चैट, इट वाज लवली. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आई एम श्योर मैंने तो काफ़ी सीखा ही अपने ब्रांड के लिए, बट आई होप द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स आल्सो लर्न अ लॉट. एंड if to end this, if one thing you have to say to our new age fashion brand owners who have just started something or who want to start something, one advice क्या रहेगा उनके लिए? Hold on to it. If you have a dream, if you have a vision, if you've seen the end vision, hold on to it. Perfect. And persistence वगैरह के साथ you will definitely achieve it. Just hold it. कैसे भी. Baddest of the baddest times may be, if you believe that the final vision is in front of you, hold on to it till the end, Perfect. is what I feel. On that note, that was a great chat, Rishabh bhai. Thank you so very much, buddy. Thank you for having me. Yes, it was our pleasure. It was my pleasure too.